Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at home. Student, you all are aware that in a 5 marks type of question in board, you have to attempt passage, paragraph questions and the cartoon based and the picture based question. So according to the chapter, we will also discuss these type of question. So in this chapter, students, you have to read the paragraph in your NCERT book from in the early year of independence to controversy tendencies were already well advanced inside the Congress party. On the one hand, the National Party execute endorsed socialist principle of state ownership, regulate the control over key sectors of economy in order to improve productivity. At the same time, proved economic consolidation. On the other hand, the National Congress government pursued liberal economic policy in incentive private investment that was justify the term sole creation of active maximum increase in production. So from this in this chapter, in notes as well as in a question answers, we discuss that after the independence, Congress party came in a power and the party adopt uh, uh, capitalist form of economy as well as socialist को हमने किया. बट उसके बाद हम लोगों ने जो वेस्टर्न इकोनॉमी थ्योरी थी उसको फॉलो किया. मॉडल था जो, उसको हमने फॉलो किया. इट मीन्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, मतलब प्राइवेट भी किया एज वेल एज पब्लिक भी किया. प्राइवेट में ये था कि जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो कर सके, और हमने पब्लिक सरकारी जो थे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया, बिकॉज हम सोशलिज्म को मानते थे. तो इंडिया ने दोनों टाइप की जो इकोनॉमी है उसको फॉलो किया. नाउ द क्वेश्चन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द contradiction that the author is talking about. contradiction मतलब होता है बेटा अपनी चीज़ को खुद ही मतलब काट देना, ठीक है, अपनी बात को खुद ही क्रिटिसाइज कर देना, ठीक है ना, विरोधाभास जिसे कहते हैं ना हिंदी में, अपनी बात की खुद क्रिटिसाइज कर देना, उसे कंट्राडिक्शन करते हैं ना. अबाउट, टॉकिंग अबाउट, तो इनमें कि क्या ऑथर जो है वो किस चीज़ के लिए कह रहे हैं. व्हाट वुड बी political implications in a contradiction like this, और मतलब किस तरह से ये है. तो इसमें द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द कंट्राडिक्शन रिगार्डिंग अडॉप्शन ऑफ डेवलपमेंट मॉडल आइदर सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट. मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ना या तो हमें सोशलिज्म अडॉप्ट करना चाहिए था या फिर कैपिटलिस्ट. Political implications of this contradiction may result in a difference alone party member itself, and government can issue and permit the more complicated manner. इससे क्या हुआ बेटा, हम लोग ने ये चाहा था कि भाई जो चीज़ दोनों मतलब सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट दोनों ही कंट्राडिक्शन है, ठीक है, पूर्व और पश्चिम को हम एक साथ कैसे ला सकते हैं. इट मीन्स है ना, डे एंड नाइट साथ नहीं आ सकते. इसी तरह
ये दोनों जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है और हमने दोनों को ही अडॉप्ट किया। तो इसमें क्या था कि जो पॉलिसी मेकर थे उनका ही आपस में विरोधाभास था। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे अपने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द ऑथर इज करेक्ट, व्हाई इज इट दैट द कांग्रेस वाज परचेजिंग द पॉलिसी, वाज द रिलेटेड द नेचर ऑफ द अपोजिशन पार्टी। ठीक है, कांग्रेस वाज pursuing the policy of sole and achieving maximum increase in production. Yes, it was relate a nature of opposition parties to pursue the liberal economic policy and incentives and private investment. ठीक है, was there also a contradiction between the central leadership and Congress party and the state leadership? क्या भाई जो सेंटर बड़े नेता थे उनमें और जो स्टेट के नेता थे उनमें भी कुछ कंट्राडिक्शन था? नो, देयर वाज नो कंट्राडिक्शन बिटवीन द सेंट्रल रिलेशनशिप and the Congress party and the state level leader because state emphasizes the state ownership, regulation, control over key sector, improve productivity, whilst control leadership pursued liberal economy policy and the incentives of private investment. Okay, तो ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, अटेम्प्ट करना है। अगेन वी डिस्कस दिस कार्टून, ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ, पहले आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। देखो बेटा, इसमें है, ये क्या है, पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर है ना, और ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, अब ये क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस पर बैठी हुई है, तो कभी ये नीचे हो जा रहा है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऊपर है ना, सी सॉ की तरह ये आपको दिखाया है। अब इसमें आपको अभी अभी हमने कंट्राडिक्शन की बात करी है ना, तो इसमें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। किसका, ये आपकी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताती हूँ कि क्या क्या आपको इसमें करने हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे। तो आपका क्या होगा, कार्टून इज trying to make balance between the private and public sector to maintain। वो क्या है, प्राइवेट, मैंने अभी अभी आपको कार्टून में देख के पहले ही बता दिया कि उसमें दोनों में वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेम द पर्सन हु इज मेकिंग एफर्ट्स टू बैलेंस द, तो इसमें लिखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाउ वाज द बोथ दीज सेक्टर, how were both these sector balanced? Pandit Nehru made a balance between both the sector by adopting the model of mixed economy to promote the exchange and private and public sectors। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है ये आप मैप देखेंगे इंडिया का। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, तो ये इंडियन मैप है, इसमें आप देखना कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो 5 स्टेट्स हैव मार्क्ड A, B, C, D and E on the basis of information identified and the write the name, mention alphabet also। तो फर्स्ट है बेटा, स्टेट विच वर कनेक्टेड द
ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसमें है आपका बी, बी द अमूल बिगेन फ्रॉम दिस स्टेट। तो ये आ जाएगा आपका ये तो हो गया बेटा आपका पंजाब। ठीक है, फिर है आपका, ये है आपका गुजरात। फिर है आपका स्टेट कंसर्न द भाखड़ा नैगल डैम। तो ये आ जाएगा आपका, ये हिमाचल में आप पड़ता है। ठीक है, एंड ये हो गया डी ई। ठीक है, तो ये आप बता दोगे 3 स्टेट है, पंजाब, हरियाणा एंड वो। तो ये तो हो गए आपके कंसर्न ग्रीन रेवोल्यूशन वाले। गुजरात हो गया आपका वाइट रेवोल्यूशन, है ना, अमूल वाला। एंड आपका भाखड़ा नैगल हो गया हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एंड आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन, है ना, study the picture given below and answer the question that follow. Trying month ahead despite rain minister. Next crop May normal, है ना। अब opposition want not to explode, है ना। The 13 died in the hunger in Bihar. Tribal area was hit. Adivasis lived on routes। ठीक है, जेपी कॉल द वर्कर्स फूड। तो ये क्या है बेटा, उस टाइम के न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें आपको फेमाइन जब बिहार के अंदर आया था और दूसरी स्टेट से, मतलब जो है उन दोनों स्टेट ने ये करा था कि जो फूड ग्रेन है, क्योंकि मतलब हम लोग सफिशिएंट अपना फूड जो है ना वो पूरा नहीं कर पाते थे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, तो बिहार के अंदर आया था। तो इसमें है द अबव क्लिपिंग्स इज अबाउट विच स्टेट। तो कौन सी है ये आप लिखोगे इसका आंसर बिहार। व्हाट इज फूड क्राइसिस? फूड क्राइसिस मीन्स due to some natural disaster like famine, droughts, the state or area face the shortage of food grains, that is called food crisis. What were the main reason for food crisis? तो आप इसमें लिखोगे famine, droughts, है ना, floods, these are the main reason
है ना, इज इंडिया नाउ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, अब इंडिया फूड प्रोडक्शन में सफिशिएंट है, तो आप लिखोगे यस, नाउ इंडिया इज सफिशिएंट. Now, next question is, on the outline political map of India given below, 5 states has been marked as A, B, C, D and E. On the basis of information identified the right the name, mention alphabet also. ठीक है बेटा. अब इसमें ये बताना है आपको, जब मैं आपको कुछ क्लूज दूंगी तो आप इसमें बताओगे. तो इसमें है, पहला है कि स्टेट रिलेटेड टू केरल मॉडल. तो केरला मॉडल जो है आपका ए आएगा, और इसमें आप आगे स्टेट भी डालोगे. ये आपकी केरला स्टेट है. ठीक है, ये ए बी सी डी हमने दिए हुए हैं यहाँ पर. नंबर 2 है रिलेटेड टू स्टेट रिलेटेड टू जेसी कोमरप्पा. तो इसमें आएगा आपका ये सी आएगा, और इसमें लिखोगे आप कौन सी स्टेट है, ये तमिलनाडु. ओके. नेक्स्ट है आपका द स्टेट रिलेटेड टू हीराकुंड डैम. हीराकुंड डैम बेटो 10th क्लास में आपको पढ़ा था, महानदी पर है ना हीराकुंड. तो महानदी है ये उड़ीसा में. तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, उड़ीसा लिखोगे उसके ऊपर आप. ठीक है, ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, और इसमें आपको ये करना है. ठीक है. नेक्स्ट है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे. नेक्स्ट है, अ स्टेट फेस द फूड क्राइसिस. फूड क्राइसिस तो मैंने अभी अभी आपको बताया, बिहार. ये बिहार, चंपारण और वो भरते थे आप 10th क्लास में, चंपारण और चौरी चौरा, वही आपके फिर से आ गए. देखो ये आ गया बिहार. बिहार ने फेस करी थी. ठीक है, नेपाल के जस्ट नीचे होता है उत्तर प्रदेश एंड बिहार. तो ये आ गया आपका 4th पे आ गया बिहार. और रिलेटेड द फर्स्ट चेयरमैन, तो ये आ गया उत्तर प्रदेश. फर्स्ट जो चेयरमैन थे हमारे उसके योजना आयोग के, वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू. और इसीलिए तो आप इसमें लिख देंगे ये क्या चीज़ आपका, ये कौन थे, तो जवाहरलाल, उनसे रिलेटेड तो उत्तर प्रदेश से ही थे ना आपके जो पार्लियामेंट्री थे, जो MP थे. तो इसको आप लिखोगे कि ये आपका हो गया. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों. ये आपके 5 मार्क्स के आएंगे. इस तरह से आप इनको पढ़ लेंगे. इसीलिए कह रही हूँ कि जो आपका चैप्टर है उसे ध्यान से पढ़िए, और ये आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड मिलेंगे. सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. प्लीज़ practice these type of questions.